students. Now today is the second lecture of first chapter of FIGCSP, that is secretary. Name of the chapter is what? Secretary. So आज हमारा ये chapter finish हो जाएगा. Now we are left with three questions: functions of secretary, qualities of secretary, and here types of secretary. Okay, so now let's start without wasting time. Now in today's lecture, first of all we will deal with functions of secretary. हम पहले functions of secretary के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. Now what you exactly understand by function? फंक्शन का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है? फंक्शन का मतलब होता है कार्य. फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य. कौन कौन से काम? ये सारे काम, ये सारे के सारे जो काम है ना, वो सेक्रेटरी को परफॉर्म करने पड़ते हैं. आज हम लेक्चर में देखेंगे देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. वन इज पर्सनल सेक्रेटरी, अदर इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था सेक्रेटरी जो व्यक्ति बनेगा वो हमेशा ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, बट दैट पर्सन कैन बी वर्किंग एज अ सेक्रेटरी फॉर पर्टिकुलर पर्सन or he can be work as a secretary for a particular institution. So when one secretary is working for particular person, I give you example in my last lecture. So when Mr. X, when he is working as a secretary for Mr. Amitabh Bachchan, then Mr. X will be called as personal secretary. Why? Because Mr. X is working as a secretary for a particular person. That's why X is called as a personal secretary. On the other side, Mr. Y, he is working as a secretary for a particular institution. So Mr. Y, he is working as a secretary for a Reliance company. So Reliance is not a person, Reliance is not an individual. Rather, I should say Reliance is not an individual. So Reliance is an institution. So when Mr. Y is working as a secretary for Reliance, then Mr. Y is called as institutional secretary. I hope you must be very much clear about the difference between personal secretary and institutional secretary. Okay. Now, after getting a little knowledge of this particular concept, let's start with the functions of secretary. चाहे personal secretary हो, चाहे institutional secretary हो, but secretary के जो काम होते हैं ना, वो almost क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. Right? So whether you are a personal secretary or institutional secretary, your work remains same only. So which are the work? Functions का मतलब होता है work, कार्य. कौन कौन से कार्य परफॉर्म करने पड़ते हैं? पहला correspondence. Correspondence का मतलब होता है पत्र व्यवहार. When you are working as a secretary, so many letter comes into the organization and many letters goes from the organization. So the letter which come into the business, they are called as an inward letter, whereas letter which goes out from the organization, they are called as an outward mail. Inward mail बोलो, outward mail. So inward mail and outward mail दोनों टाइप के जो मेल होते हैं, दोनों टाइप का जो करस्पॉन्डेंस होता है, लेटर राइटिंग होता है, वो सारा का सारा काम का जो जिम्मेदारी है वो किसका होगा? सेक्रेटरी का. तो सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू draft letter, right, for sending the letter, and whenever any letter comes to the organization, then whichever letter comes into the organization, he has to read all the letters and appropriate person को जो रिप्लाई भेजना है वो रिप्लाई भी उसे भेजना पड़ेगा. सो कुल मिला के करस्पॉन्डेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझना ये था कि एक सेक्रेटरी को, एक अच्छे सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस का भी काम संभालना होगा. नंबर 2, ऑफिस मैनेजमेंट. Now what exactly you understand by office management? Management शब्द का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस शामिल होते हैं? याद रखिए बच्चों, ये 4 बातें बोले जा रहा हूँ: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कम ऑन, आई विल वंस अगेन. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और एक बार क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 4 काम जो होते हैं ना, ये 4 काम को मिलके जो बनता है कॉमन नाम, वो होता है मैनेजमेंट. नो डाउट मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड ओनली दिस 4 एलिमेंट्स, इट इंक्लूड्स मेनी एलिमेंट्स, बट फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर एट योर लेवल यू कैन अंडरस्टैंड अप टू दिस मच. सो कभी भी बिजनेस में प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है,
उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना, राइट, कंट्रोल करना। अगर कोई काम सही से टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है तो उसके लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ सॉल्यूशन देना पड़ता है, उसे कहते हैं कंट्रोल करना। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चारों कामों को हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो ऑफिस का जो मैनेजमेंट होता है, बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदारी किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। नंबर 3, रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शनिस्ट सुना होगा। रिसेप्शनिस्ट कौन होता है? एक पर्सन होता है जो कभी भी आपके ऑफिस में बाहर से जो विजिटर्स आएंगे उनको अटेंड करना, उनको बिठाना, या वो किस पर्पस के लिए आए हैं उसके लिए समझना, और अकॉर्डिंगली बॉस के केबिन में जिन जिन लोगों को भेजना है वो सारा काम हैंडल करना, वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। और ये जो काम होता है ना, उस काम को क्या बोलते हैं? रिसेप्शन फंक्शन। So person who handle the reception function, he is called as a receptionist, and that receptionist, right, whenever he do his work or her work, then it is called as what? Reception function. So reception function का मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया, right, many times many visitors comes, we have to attend it, we have to offer a tea, coffee, sometimes we have to offer what some other refreshments. So all this type of work comes under what? Reception function. नंबर 4, फाइनेंशियल फंक्शंस। यस, सेक्रेटरी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस पर्सन के लिए सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, उस पर्सन के लिए, उस कंपनी के लिए जितने भी फाइनेंशियल काम होते हैं ना, वो सारे फाइनेंशियल काम हैंडल करने होते हैं। फाइनेंशियल काम का मतलब क्या? जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी रिसीट्स होती है, जितने भी पेमेंट्स होते हैं बिजनेस के, वो सारा का सारा रिसीट्स, सारा का सारा पेमेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कुल मिला के पैसों के संबंधित जितने भी काम होते हैं ना, सारे काम सेक्रेटरी के ही होते हैं। ये सारे काम सेक्रेटरी को ही करना होता है। सो नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स रिवाइज इनिशियल 4 पॉइंट्स। पहला क्या था? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस में क्या सीखा? इनवर्ड लेटर, आउटवर्ड लेटर, राइट, लेटर राइटिंग, ये सारा काम सेक्रेटरी का होता है। ये सारे काम को करस्पॉन्डेंस कहते हैं। नंबर 2, ऑफिस मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चारों कामों को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। सो बिजनेस का जो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है वो सेक्रेटरी का है, ये सेक्रेटरी का ही काम है। नंबर 3, रिसेप्शन फंक्शन। व्हेनेवर इन योर ऑफिस many visitor comes from outside the office, right, we have to attend it properly, we have to offer some tea, coffee, water, etc., and this type of work is called as a reception work. Number 4, financial function. All finance related, that is receipts, payments, banking transactions, all this transaction secretary is required to handle well. ये सारे काम secretary को अच्छे से handle करने पड़ते हैं। Number 5, arranging meetings. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, सेक्रेटरी ही इज द ओनली पर्सन, ही इज रिक्वायर्ड टू अरेंज, मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट टू कंडक्ट एन इफेक्टिव मीटिंग। एक अच्छी मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए सेक्रेटरी को ये मीटिंग के रिलेटेड काम करने होते हैं। अच्छा, मीटिंग के कामों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वर्क बिफोर द मीटिंग और ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग, ड्यूटीज ड्यूरिंग द मीटिंग एंड ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग। कम ऑन, ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग, ड्यूटीज ड्यूरिंग द मीटिंग एंड ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग होने से पहले कौन कौन से काम करने होते हैं, मीटिंग के दौरान क्या क्या काम करना होता है, मीटिंग के बाद क्या क्या काम करना होता है, ये सारे कामों का जिम्मेदारी मीटिंग के रिलेटेड ये सेक्रेटरी का होता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग होने से पहले कौन कौन से काम होते हैं? नोटिस ड्राफ्ट करना, एजेंडा ड्राफ्ट करना, ठीक है, या हॉल बुक करना, फाइल्स, पेपर्स, राइट, टेबल्स पे रेडी रखना। दीज आर द ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग। ड्यूटीज ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग जब चल रही है तभी क्या क्या काम सेक्रेटरी को करने होते हैं। जैसे मान लो कि मीटिंग में जो डिस्कशन होता है वो डिस्कशन उसे लिखना होता है, उसे कहते हैं मिनट लिखना, ठीक है। पूरे मीटिंग के दौरान या मीटिंग शुरू होते समय ही अटेंडेंस लेना, उसे कहते हैं कोरम। सो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं मीटिंग के दौरान। पूरा डेकोरम अच्छे से मेंटेन रखना, अच्छे से साइलेंस मेंटेन रखना, अच्छे से मैनेजमेंट मीटिंग का करना, ये सारा काम सेक्रेटरी का ही होता है। मीटिंग होने के बाद क्या काम होते हैं? मीटिंग के दौरान जितने भी डिसीजन लिए हैं ये सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम भी सेक्रेटरी का ही होता है। So all work which are related to meeting will be handled by secretary. Next, statutory function. Now what you understand by word is statutory? Come on, statutory का मतलब होता है लीगल।
जितने भी कानूनी काम होते ना, ये सारे के सारे कानूनी काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। मीन्स व्हेन वन पर्सन acting as a secretary for particular organization, then he has to see that whether company has followed all the rules and regulations, all the sections, all the provisions which are applicable to that organization or not. जो भी कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं ना, उन सेक्रेटरी को इस बात का ध्यान देना होता है कि क्या हमारी कंपनीज के सारे रूल्स रेगुलेशंस सेक्शंस सही तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उनको ध्यान देना होता है। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी फंक्शंस, राइट। जितने भी कानूनी सेक्शंस सही तरह से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे हम लोग कंप्लायंस भी बोल सकते हैं, कंप्लायंस फंक्शन। सो यहाँ पर लिखा है स्टैट्यूटरी फंक्शन। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन फॉर्मेटिंग पॉलिसीज। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है फ्रेमिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को फ्रेम करना मतलब प्रिपेयर करना। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो, कमान, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो तो एक सिस्टम होता है, एक पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी के तहत ही आपको आपकी कंपनी को चलाना होता है। लेकिन बच्चों, वो जो कंपनी चलाने के लिए जो पॉलिसी होती है, कंपनी चलाने के लिए जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम बनाने का काम तो बॉस का होता है। लेकिन बॉस जब ये काम करने बैठे तो उस काम के दौरान सेक्रेटरी इज अ पर्सन who will guide to the boss। सेक्रेटरी बॉस को क्या करेगा? गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। जो गाइडेंस देना है वो सब वो प्रोवाइड करेगा। तो जब भी कोई पॉलिसी बनाना है, जैसे कंपनी में वर्कर को प्रमोशन कैसे देना है, कंपनी में वर्कर को ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करना है, ऐसे अलग अलग विषय को लेकर बहुत सारी पॉलिसी होती है। लंच ब्रेक का पॉलिसी क्या होना चाहिए, बोनस का पॉलिसी क्या होना चाहिए, सैलरी का पेमेंट करने का पॉलिसी क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे अलग अलग विषय लेके कंपनी के अंदर बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं। तो जितने भी पॉलिसीज कंपनीज में बनते ना, इन सारी पॉलिसीज को बनाते समय सेक्रेटरी क्या करेगा? असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो ही विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ असिस्टेंस टू द बॉस फॉर फ्रेमिंग द पॉलिसीज। सेकंड आंसर, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। यस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मीन्स व्हेनेवर बॉस वांट टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जब भी बॉस को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहता है तो बॉस के पास क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ओनली बॉस इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए बॉस के पास एक प्रॉपर ठोस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बॉस के पास, तो यह सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन का वो अरेंजमेंट करे, वो इंफॉर्मेशन का वो इंतजाम करे, और वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैसे हैंड ओवर कर देगा? बॉस को। और जैसे वो इन्फॉर्मेशन बॉस के पास आएगा, बॉस उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या ले लेगा? डिसीजन ले लेगा, और एक अच्छा डिसीजन कंपनी को ग्रो कराएगा। तो ये सेक्रेटरी का फर्ज होता है कि समय समय पे अगर बॉस ने कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड किया तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किसे? बॉस को। एंड लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? ऑफिस के अंदर जो भी काम होते हैं ना, वो सारे काम को हम एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे प्रॉपर जो भी लेटर्स आते हैं उसका प्रॉपर फाइलिंग करना, ठीक है, समय समय पे जो ऑब्जेक्ट्स या जो गोल हमने सेट किए थे वो सही तरह से अकम्प्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसका एक बार रिव्यू लेना, है ना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ये सारे कामों को एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम पर सर महीने के एंड में सारे स्टाफ का सैलरी का राइट कैलकुलेशन सही तरह से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टाइम पर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे जो काम होते हैं ना उसको हम शामिल कर सकते हैं किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। ओके, एक काम करते हैं, लास्ट के जो 5 पॉइंट है वो हम रिवाइज करते हैं। ऊपर के 4 पॉइंट हमने रिवाइज कर लिए थे। सो पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 था अरेंजिंग मीटिंग। मीटिंग के रिलेटेड जो काम होते हैं वो सेक्रेटरी मैनेज करेंगे। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी फंक्शन। कंपनी ने अपने कंपनी चलाते समय कंपनियों को कंपनीज एक्ट और ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे जीएसटी एक्ट भी है, राइट, कंपटीशन एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट है। ये सारे के सारे एक्ट कंपनी सही तरह से फॉलो कर रही कि नहीं कर रही है, वो सेक्रेटरी क्या करेगा? ध्यान देगा, सेक्रेटरी चेक करेगा, और बल्कि सेक्रेटरी को भी ये सारे सेक्शंस को क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सो कंपनी प्रिपेयर डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट को लेके कंपनी की पॉलिसीज होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बोनस कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करना चाहिए स्टाफ को, प्रमोशंस कैसे मिलना चाहिए स्टाफ को। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट को लेके अलग अलग पॉलिसीज बनती है। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज को बनाते समय
राइट, क्या देना पड़ता है, असिस्टेंस। कौन किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सेक्रेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, किसे, बॉस को। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, नाउ boss want to take an important decision. Now to take an important decision, owner require what, the information. Now it is a secretary who will provide information to the boss, and once information comes, and on that basis owner can take an effective decision. And last, administrative functions. All companies work. For example, like whether company has calculated all the staff salary or not, whether company has maintain a proper books of accounts or not, कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, ये सारी बातें सेक्रेटरी को देखनी होती है. नाउ ही इज रिक्वायर्ड टू हैंडल ऑल दिस थिंग. दे आर कॉल्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स वेल. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी. तो जब एक सेक्रेटरी किसी पर्सन के लिए काम करता है तो उसे कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, और जब कोई सेक्रेटरी किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है तो उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सो वो पर्सनल सेक्रेटरी हो या इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी फंक्शंस क्या होते हैं, सेम. सो आई वांट यू टू रिवाइज दिस पॉइंट्स फॉर नेक्स्ट 1 minute, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. सो फर्स्ट यू रिवाइज इट, कम ऑन. ओके स्टूडेंट्स, आपने रिवाइज कर लिया. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. ऑलमोस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ पर जो नीचे जो 4 पॉइंट्स है ना, वो मुझे आपको थोड़े से एक्सप्लेन करने हैं. तो सबसे पहले ना माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करो जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे क्रिएट किया है. यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. ना सेक्रेटरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. कम ऑन, आई रिपीट वंस अगेन. One is called as a personal secretary, other is called as a institutional secretary. एक personal secretary है और एक institutional secretary. We discussed many times. When particular person is working as a secretary for another person, another individual, then it is called as a personal secretary. And when particular person working as a secretary for particular institution, then that person is called as a institutional secretary. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा है, उसे पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं. और एक व्यक्ति दूसरी संस्था के लिए काम कर रहा है, किसी संस्था के लिए काम कर रहा है, तो उसे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं. तो पर्सनल सेक्रेटरी का एग्जाम्पल था मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी फॉर मिस्टर अमिताभ बच्चन. एक्स जो है ना वो अमिताभ बच्चन के लिए काम कर रहे हैं, तो एक्स विल बी कॉल्ड एज अ पर्सनल सेक्रेटरी. ऑन दी अदर साइड मिस्टर वाई जो है ना वो किसी एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए काम करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करे. ये 4 यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के टाइप्स बताइए. इंस्टीट्यूशंस है. अगर सेक्रेटरी यहाँ पर अगर काम करेगा ना तो उसे क्या कहा जाएगा, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. पहला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नाम से ही समझ में आना चाहिए, क्या लिखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, क्लब, राइट, इवन लाइब्रेरी. सो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, dispensary, library, gymnasium, these are the organization, right? They are called as what, an institution. उसे बच्चों उसे हम बोलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर कोई सेक्रेटरी किसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है, अगर कोई सेक्रेटरी किसी स्कूल के लिए काम कर रहा है, अगर कोई सेक्रेटरी किसी ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर उसे सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी.
नाउ आने वाले समय में हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे व्हाट एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, नाम में इसका राज छुपा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक 10, 15, 20 लोग इकट्ठा होते हैं, ये पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और जो कॉमन पैसा इकट्ठा होगा उस पैसों से जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा ना, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कह सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज 20 लोग हैं, देयर आर टोटल 20 फ्रेंड्स एंड दे केम टुगेदर एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द मनी। सपोज ये 20 लोग का जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टोटल 20 लोग हैं, हर एक व्यक्ति ने एग्जाम्पल 10,000 रुपया निकाला, तो अगर हर एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपये निकालेगा तो 20 व्यक्तियों के हिसाब से कितना कैश कलेक्ट हो जाएगा, 2 लाख रुपए, 2 lakhs। अब ये 2 लाख रुपए के बेसिस पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा और उस बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, लोगों की सेवा करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर इसके लिए कोई सेक्रेटरी काम करे ना तो उस सेक्रेटरी को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर सेक्रेटरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसे बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर सेक्रेटरी किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रस्ट के लिए काम करे उसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइक रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, बिरला, these are the joint stock company। इनफैक्ट आने वाले जो चैप्टर्स है ना, वो सारे के सारे चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी पे ही कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस। अच्छा, ऐसी कंपनियों के लिए अगर कोई सेक्रेटरी काम करे ना, सो दैट सेक्रेटरी इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड लास्ट, सेक्रेटरी ऑफ क्या लिखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Now first of all you should know what exactly government department means. In India there are many government departments. Say for example railway department, defense department, agriculture department. There are so many departments and every department should have one secretary, and when that person, when he or she is working as a secretary in that department, then that person is called as a secretary of government department. रेलवे जो मिनिस्ट्री है आज की तारीख में, राइट, मिस्टर पीयूष गोयल, राइट, ही इज अ रेलवे मिनिस्टर, बट इन ऑर्डर टू मैनेज एवरीथिंग प्रॉपर्ली देयर माइट बी वन सेक्रेटरी, राइट, एंड ही गिव अ प्रॉपर डायरेक्शन टू मिस्टर पीयूष गोयल हु इज अ रेलवे मिनिस्टर, बट देन एंटायर डिपार्टमेंट गेट्स मैनेज वेल। सो उस सेक्रेटरी को हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ही इज बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ क्या, रेलवे डिपार्टमेंट। सो रेलवे डिपार्टमेंट कम्स अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डिफेंस डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होंगे, राइट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होंगे। तो ये जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, ऐसा कहा जाएगा। अच्छा, मैं चारों के लिए ना एक इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूँगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी व्यक्ति को सेक्रेटरी बनना है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या, लायकात, योग्यता, राइट, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। खाली वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक सेक्रेटरी किसी स्कूल के लिए काम करे तो स्कूल के बारे में नॉलेज उनको होना चाहिए कि स्कूल कैसे रन होता है, स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट इन ऑर्डर टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ एनी स्कूल और कॉलेज, देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। नंबर 2, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन अगर हम महाराष्ट्र में ना, तो महाराष्ट्र में अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश करना है, देयर इज वन एक्ट, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। आई रिपीट, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। सो अगेन कोऑपरेटिव, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है, उसमें सेक्रेटरी का जो क्वालिफिकेशन है ना, वो क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। बेसिकली इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है। ही मस्ट बी हैविंग अ वेल नॉलेज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी, यस, अगर आपको किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए सेक्रेटरी बनना है, मतलब रिलायंस के लिए, टाटा के लिए, इन्फोसिस के लिए अगर सेक्रेटरी बनना है, तो उसके लिए he or she must be a member of ICSI।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब a person who would like to become a secretary of joint stock company, Reliance or Tata, this kind of joint stock company, then he must be a CS, he must be a company secretary, he must have cleared the exams of ICSI, उनके ICSI के exams clear होने चाहिए, then he is eligible to become a secretary for Reliance or Tata. And last one, government department. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनने के लिए आपको उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपकी सिविल सर्विस एग्जाम्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे यूपीएससी होती है, राइट, यूपीएससी एमपीएससी, गुजरात में है जीपीएससी होता है, महाराष्ट्र में एमपीएससी होता है। सो ये जो यूपीएससी की एग्जाम्स होती है, यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस, बराबर, तो यूपीएससी हो या जीपीएससी हो या एमपीएससी हो, ये एग्जाम्स क्लियर हो गए ना तो ही वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या बन सकता है, सेक्रेटरी बन सकता है। ओके, सो नाउ आई वांट यू टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। ओके, ये स्टूडेंट्स हो गया रिवाइज। अच्छा, मैं चाहता हूँ वापस एक बार ये रिवाइज हो गया ना, अब ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले 9 पॉइंट्स, उसके ऊपर रिकल करो फटाफट से, और उसके बाद हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसे एक बार रिवाइज करो, कम ऑन रिवाइज करो। चलिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ आपके सारे रिविजन्स हो चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्सनल लाइफ के लिए प्लस एजुकेशन लाइफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। सिलेबस में तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में टैम श्योर आएगा। क्या लिखा है, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है एक्यूरेसी। एक अच्छा सेक्रेटरी बनने के लिए ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज सेक्रेटरी में होनी चाहिए। पहला लिखा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, सेक्रेटरी जो भी काम करे ना सब करेक्ट होना चाहिए। whatever type of work he is doing, right, while performing his duty as a secretary, he should do all the work 100% correct। सारा का सारा काम उसका 100% करेक्ट में ही जाना चाहिए, कोई काम में उनका खुद का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक उनका वर्क होना चाहिए। नंबर 2, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर कोई सिचुएशन बदल रहा है, बदलती हुई सिचुएशन को अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेते हो ना, उस प्रकार की क्वालिटी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेबिलिटी। आई रिपीट वंस अगेन व्हाट आई स्पोक। मैंने कहा अगर आप जहां पर काम कर रहे हो, आसपास वातावरण में, पर्यावरण में अगर सिचुएशन बदल रही है, तो बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से अगर हम अपने आप को ढाल लेते हैं, हम अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, तो उस प्रकार की क्वालिटीज को क्या बोलते हैं, एडेप्टेबिलिटी। जैसे एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक लड़की जो होती है, राइट, बचपन से लेके राइट यंग एज तक, राइट, वो अपने माता पिता के घर रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जब वो शादी लायक हो जाती है, उसके बाद जब वो शादी करके ससुराल जाती है, तो ससुराल जाती है तो ससुराल में उसका सिचुएशन क्या होता है, अलग होता है, और उनके खुद के घर में सिचुएशन क्या था, अलग था। तो उस लड़की को हमेशा ससुराल में जाके ससुराल की जो सिचुएशन होती है ना, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो फीमेल्स में ये वाली क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, एडेप्टेबिलिटी की। वापस कम बैक करो हमारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में। एक सेक्रेटरी, अच्छा सेक्रेटरी वो होता है कि आसपास जो एनवायरनमेंट है, इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। So as and when environment gets changed,
इवन सेक्रेटरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज हिमसेल्फ, उसे भी अपने आप को उस सिचुएशन में क्या करना होगा, ढालना होगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेक्रेटरी एक अच्छा निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेट करना मतलब क्या, एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना। सेक्रेटरी अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। सेक्रेटरी होशियार है नो डाउट, बट सेक्रेटरी को हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स है उन्हें अगर कोई चीज़ें समझ में ना आए तो उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। सो ऐसा कई बार होता है कि ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ होते हैं, लोअर लेवल पे स्टाफ होते हैं, उनको अपने काम के बारे में अच्छे से समझ नहीं होती। उन्हें अपने काम करने के दौरान कुछ डिफिकल्टीज आती है, उन्हें डिफिकल्टीज को पूरी करने के लिए, उन कामों को अच्छे से समझाने के लिए सेक्रेटरी हमेशा रेडी होना चाहिए। अगर सेक्रेटरी ऐसा करते हैं तो सेक्रेटरी को क्या कहा जाएगा, कोऑपरेटिवनेस। सेक्रेटरी के अंदर ये कोऑपरेटिवनेस का गुण है। फोर्थ, कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता, नम्रता। मतलब सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए। सेक्रेटरी मस्ट बी काइंड हार्टेड। सेक्रेटरी हमेशा काइंड हार्टेड होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। जब अगर वो अपना स्वभाव बहुत ही काइंडनेस वाला रखेगा ना, मुझे विश्वास है मेनी पीपल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्सन, टुवर्ड्स द सेक्रेटरी। तो व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी एज अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मस्ट बी कर्टियस। सेक्रेटरी के अंदर कर्टियस का क्वालिटी होना चाहिए। नंबर 5, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या, इनिशिएटिव एक ऐसा गुण है, इनिशिएटिव एक ऐसी क्वालिटी जहां पर पर्सन हमेशा सामने से विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कोई भी काम को करने के लिए। सो व्हेन वन पर्सन टेक अ willingly responsibility to do a particular type of a job, particular type of a work, then that person shows what initiative। तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया। तो सेक्रेटरी के पास भी इनिशिएटिव का क्वालिटी होना चाहिए। बॉस के एब्सेंस में अगर सेक्रेटरी को कोई अगर निर्णय लेना पड़े बिजनेस के अच्छे भले के लिए, तो उसके पास ऐसी अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि बॉस के एब्सेंस में बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन ले सके। So I repeat once again, what exactly initiative means? When a person takes a responsibility voluntarily, willingly to do a particular type of work, then that taking of responsibility shows that right initiative. उसको initiative कहते हैं। लीडरशिप, सेक्रेटरी के अंदर लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए। लीडरशिप मतलब क्या, सेक्रेटरी कोई भी काम करे ना तो उनके काम को नजर रखते हुए जो बाकी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनको फॉलो करने चाहिए। So whenever people start following you, it means you are having a leadership quality. जब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो ये मान लो बच्चों कि आपके अंदर वो लीडरशिप का गुण आ चुका है। सो ऑलवेज लीडरशिप का गुण उन व्यक्ति में होता है जो हमेशा खुद पहले एक एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं और उनके कामों को देख के बाकी सारे लोग क्या इंप्रेस हो जाते हैं और बाद में वो सारे लोग भी उस व्यक्ति के जैसे, उस सेक्रेटरी के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं लीडरशिप। नेक्स्ट, लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, वफादार होना चाहिए। सेक्रेटरी मस्ट बी लॉयल, सेक्रेटरी हमेशा लॉयल होना चाहिए। कोई भी काम किसी सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी इज अ कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सो सेक्रेटरी के पास ऑर्गेनाइजेशन की सारी गुप्त बातें होती है, तो ये सारी गुप्त बातें, ये सारी सीक्रेट बातें कभी भी सेक्रेटरी को लीक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सेक्रेटरी हमेशा कैसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा जो सामान है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सही तरह से ऑर्डर में होनी चाहिए। सेक्रेटरी का सारा काम तो ही ऑर्डर में होगा। Whenever a secretary would like to do any particular work, so if everything in its own place, जब सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर होगी ना तो सारी चीज़ें हमें समय पे मिल जाती है और हमारा काम सही तरह से ऑर्डर में होना शुरू हो जाता है। सो इट इंक्रीज अवर कॉन्फिडेंस, इट इंक्रीज अवर स्पीड ऑफ द वर्क। इससे हमारे वर्क का स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। तो ऑर्डरलीनेस का गुण भी सेक्रेटरी में होना चाहिए। सारा काम वो पहले से क्या प्रॉपरली ऑर्डर में करके रखेंगे और वो अच्छे से अपना काम को अंजाम दे देते हैं। नेक्स्ट है प्लीजिंग पर्सनालिटी। सेक्रेटरी की जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का मतलब क्या, मेंटल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। सेक्रेटरी की पर्सनालिटी इतनी प्लीजिंग होनी चाहिए। प्लीजिंग मतलब क्या, ऐसी होनी चाहिए कि लोग उनके व्यक्तित्व को देख के एकदम खुश हो जाए, उनके व्यक्तित्व को देख के वो एकदम आकर्षित हो जाए। अगर लोग सेक्रेटरी के व्यक्तित्व को देख के अगर खुश हो जाते हैं तो हम समझ लेंगे कि हमारी पर्सनालिटी, उस सेक्रेटरी की पर्सनालिटी कैसी मानी जाएगी, प्लीजिंग, बेस्ट।
नेक्स्ट, नॉलेज सीकर। सीकर का मतलब होता है ढूंढना, सीकर का मतलब होता है ढूंढने वाला, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। सेक्रेटरी के पास नो डाउट बहुत सारा नॉलेज होता है, बट सेक्रेटरी के पास ऐसा माइंड होना चाहिए, सेक्रेटरी का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वो नई नई चीज़ें क्या खोजते रहनी चाहिए, नई नई इंफॉर्मेशन के खोज में हमेशा लगा रहना चाहिए। तो एक अच्छा सेक्रेटरी वो होता है जो हमेशा नॉलेज सीकर हो, ही जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी। सेक्रेटरी हमेशा क्या होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या, ही मस्ट बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट हिज और हर टाइम। ऑर्गेनाइजेशन में अगर सुबह 9 बजे की उनकी ड्यूटी है तो 9 बजे या 9 बजे से पहले उसे ऑफिस में पहुंच जाना है। अगर उनकी ड्यूटी शाम को 5 बजे समाप्त होती है तो 5 बजे ही वो जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि 5 के बाद जाए, उसके पहले वो नहीं जाएंगे। ही इज ऑल वर्क मस्ट बी ऑन टाइम, उसके सारे काम कैसे होने चाहिए, ऑन टाइम ही होने चाहिए, तो उसे कहते हैं पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट है साउंड जजमेंट। यस, सेक्रेटरी के पास ऐसा माइंड होना चाहिए कि वो सिचुएशन को अच्छे से भाप ले, समझ ले एडवांस में ही, और उसमें बेस्ट डिसीजन जो लेना पड़े ना वो उसे लेना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। तो एक अच्छा सेक्रेटरी वो होता है जिनके पास बहुत ही साउंड है। साउंड का मतलब होता है इफेक्टिव, असरकारक क्या होना चाहिए, जजमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। सिचुएशन ऐसी है तो उसमें क्या निर्णय लेना है उसे लेने आना चाहिए। अगर ऐसा निर्णय वो ले सकता है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास साउंड जजमेंट का क्वालिटी है। लास्ट, टैक्टफुलनेस। शब्द टैक्ट, TACT, शब्द टैक्ट का हिंदी शब्द है चतुर। सेक्रेटरी हमेशा चतुर होना चाहिए, सेक्रेटरी हमेशा टैक्टफुलनेस उसके अंदर होनी चाहिए, राइट। वो कभी भी अपने स्टाफ से इतनी चतुराई से काम करवा के ले लेता है कि स्टाफ को पता ही नहीं चले कि सेक्रेटरी उनसे काम करवा के ले लिया। तो यस, एक अच्छे सेक्रेटरी के पास, एक अच्छा सेक्रेटरी के पास ये वाला गुण भी होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स को एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या, 100% करेक्ट। सेक्रेटरी जो भी काम करे वो कैसा होना चाहिए, 100% करेक्ट। नंबर 2, एडेप्टेबिलिटी। सिचुएशन एनवायरनमेंट हमेशा क्या होते रहता है, चेंज। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से, बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से सेक्रेटरी को भी अपने आप को बदलना होगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो उनके पास एडेप्टेबिलिटी का गुण है। नंबर 3, कोऑपरेटिवनेस। सेक्रेटरी जब भी ऑफिस में काम करे तो उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके जो बाकी के स्टाफ होते हैं, उनको अगर काम करने में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उन दिक्कत को, डिफिकल्टीज को दूर करने का काम सेक्रेटरी का होता है। तो तब ये सेक्रेटरी का गुण आ गया है, कौन सा, कोऑपरेटिवनेस। कर्टसी, सेक्रेटरी का स्वभाव कठोर नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ही मस्ट बी वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, देन एवरीबडी विल लाइकिंग सेक्रेटरी। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स व्हाट, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरीली टू डू पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। कोई भी काम को करने की जिम्मेदारी सामने चल के अगर हम ले लेते हो ना तो उसे कहते हैं इनिशिएटिव। एंड यस, स्टाफ काम करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन सेक्रेटरी को सारे स्टाफ के सामने खुद का एग्जाम्पल बनाना होगा, राइट। खुद वॉलंटरी पहले काम करेंगे और उसके देखते हुए बाकी स्टाफ भी काम करना शुरू कर देते हैं। लीडरशिप ना, लीडरशिप मतलब क्या, सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी का काम ऐसा होना चाहिए कि लोग उनको फॉलो करना शुरू करें। सेक्रेटरी का काम इतना सिस्टमैटिक और स्मूथ और प्रोफेशनल होना चाहिए कि उनके स्टाफ उनके काम को देख के तारीफ करें, राइट, उनकी वाह करें और उनको फॉलो करना शुरू करें। तो हम कह सकते हैं कि उस सेक्रेटरी के पास क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी है। नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। सेक्रेटरी के पास बिजनेस की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसे कभी भी इन्फॉर्मेशन को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ शेयर नहीं करना है। अगर वो शेयर नहीं करते हैं, सारी बातों को गुप्त रखते हैं, तो हम कहेंगे कि सेक्रेटरी के पास लॉयल्टी का गुण है। नेक्स्ट, ऑर्डरलीनेस। सेक्रेटरी का सारा काम ऑर्डर में होना चाहिए, और सारा काम ऑर्डर में होने के लिए जो चीज़ें ऑफिस में होती है वो सब अपने अपने जगह पर सही जगह पर होनी चाहिए, तभी सारा काम ऑर्डरलीनेस में होगा। प्लीजिंग पर्सनालिटी। सेक्रेटरी का जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो फिजिकल पोस्चर हो या मेंटल एबिलिटी हो या सोशल नॉलेज हो, सब उनका एक से बढ़कर एक होना चाहिए, तब उनकी पर्सनालिटी क्या प्लीजिंग मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट, नॉलेज सीकर। No doubt secretary has an abundant knowledge, but still he has to keep on finding new information, new knowledge from outside world. Next, punctuality. Secretary हमेशा कैसा होना चाहिए, punctual होना चाहिए. He has to reach every place wherever he wanted to reach on time or before time, but not after the time. हाँ, तो तब कह सकते हैं कि सेक्रेटरी के पास punctuality का गुण है. नेक्स्ट है साउंड नॉलेज।
सेक्रेटरी के पास कैसा नॉलेज होना चाहिए? साउंड नॉलेज होना चाहिए। साउंड मतलब क्या? बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो साउंड जजमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या बेस्ट डिसीजन लेना है, उनका जजमेंट उनको लेने की एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। अगर वो एबिलिटी उनमें है तो मैं कह सकता हूँ कि उनके पास साउंड जजमेंट का क्वालिटी है। लास्ट पॉइंट, टैक्टफुलनेस। जैसे मैंने आपको बताया, टैक्ट का मतलब होता है चतुर। सेक्रेटरी के पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए, सेक्रेटरी के पास ऐसा गुण होना चाहिए कि वो खुद एक चतुर बन जाए। चतुर मतलब क्या? बहुत ही चतुराई से अपने स्टाफ और सबऑर्डिनेट से वो काम करवा के दे देते हैं, तो वो था टैक्टफुलनेस। नाउ आई वांट यू टू रिवाइज ऑल दिस 13 क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। एक आदर्श सेक्रेटरी बनने के लिए, एक आइडियल सेक्रेटरी बनने के लिए, एक नोबल सेक्रेटरी बनने के लिए कौन कौन से गुण, कौन कौन सी क्वालिटीज सेक्रेटरी में होनी चाहिए, वो यहाँ पर मैंने लिखी है। एक बार रिवाइज कीजिए और फिर ये लेक्चर को अंत करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, बट यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दिस थिंग।